Hello everyone, welcome back to my channel and today I am going to discuss two articles from Hindu newspaper. The first article is about PM welcomes Putin. First point, Prime Minister Narendra Modi personally welcomed the Russian president on his arrival at the Air Force station in Delhi, marking a significant diplomatic gesture that highlights the strength and warmth of India Russia relations. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पर्सनली रशियन प्रेसिडेंट का एयरपोर्ट पर वेलकम किया है, जो एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक गेस्चर है और ये इंडिया रशिया पार्टनरशिप की वार्म को क्लियरली दिखाता है. सेकेंड पॉइंट, दिस विजिट इज द रशियन प्रेसिडेंट्स फर्स्ट ट्रिप टू इंडिया सिंस द स्टार्ट ऑफ द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, making it geopolitically important as it signals continuity in India's balanced foreign policy and its strategic autonomy in global affairs. ये विजिट रशिया के प्रेसिडेंट की पहली इंडिया ट्रिप है जो यूक्रेन वॉर के शुरू होने के बाद, और इसलिए ये जियो पॉलिटिकल लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है क्योंकि जो इंडिया अपनी बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी को क्या कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है. थर्ड पॉइंट, PM Modi mentioned that he is delighted to host the Russian president and emphasized that their friendship has constantly benefited both nations, particularly in areas of defense cooperation, energy partnership, and long term strategic trust. पीएम मोदी ने कहा है कि उन्हें अपने फ्रेंड के वेलकम करके खुशी हुई है और ये दोनों कंट्री की दोस्ती ने क्या डिफेंस एनर्जी स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन में हमेशा म्यूचुअल बेनिफिट दिया है. फोर्थ पॉइंट, द लीडर्स हेल्ड अ प्राइवेट डिनर मीटिंग एट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिशियल रेसिडेंस, इंडिकेटिंग द हाई लेवल ऑफ पर्सनल rapport between the two and the importance India places on maintaining strong ties with Russia despite global pressure. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और रशियन प्रेसिडेंट की प्राइवेट डिनर मीटिंग पीएम रेजिडेंस पर हुई है और जो उनके पर्सनल रैपोर्ट और रिलेशनशिप की डेप्थ को हाईलाइट करती है, स्पेशली ग्लोबल टेंशन के बीच. फिफ्थ पॉइंट, रशिया's डिफेंस मिनिस्टर was also in New Delhi for bilateral discussions, and India's defense minister highlighted that deep trust and long-standing cooperation between the two countries, especially in defense production and technology. रशिया के डिफेंस मिनिस्टर भी दिल्ली पहुँचे जहां उनकी मीटिंग जो थी वो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर से हुई, जिसमें दोनों ही कंट्रीज़ ने अपने डीप ट्रस्ट और लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस पार्टनरशिप को क्या करा, रिफॉर्म किया. Sixth, India stressed that the need to strengthen joint defense manufacturing and advanced technological cooperation, aligning with the India's goal of becoming self-reliant and expanding domestic defense capabilities. इंडिया ने फोकस किया है कि दोनों कंट्रीज़ को एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज़, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग और मिलिट्री कॉपरेशन को और क्या स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, जो इंडिया की सेल्फ रिलायंस गोल्स के लिए क्या है, क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है. सेवेंथ पॉइंट, द विजिट इंक्लूडेड शेड्यूल्ड bilateral टॉक्स कवरिंग रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, इकोनॉमिक cooperation and strategic communication, all of which are crucial for India's broader geopolitical positioning in Eurasia and Indo-Pacific. 7.6 की बिलेटरल टॉक्स में रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक पार्टनरशिप और स्ट्रैटेजिक इशू पर डिटेल डिस्कशन हुए हैं जो इंडिया की यूरेशिया और इंडो पैसिफिक पोजीशनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. एट पॉइंट, इंडिया reiterated its aim to become both a major defense manufacturer and exporter, and the discussions during the visit reinforced India's objective of diversifying partnership while retaining Russia as a key strategic पार्टनर. इंडिया ने फिर से एम्फसाइज किया है कि वो एक मेजर डिफेंस मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर बनना चाहता है और रशिया के साथ ऑनगोइंग कॉपरेशन इस गोल को अचीव करने में स्पेशली हेल्पफुल रहेगा. The second article is about freeze and thaw. First point, India is facing a phase of relative diplomatic isolation as the global discourse on terrorism, security, and geopolitical alignments is shifting, and many major powers are prioritizing their own strategic interests over coordinated global action against terror. आर्टिकल ये बताता है कि इंडिया आज एक तरह की डिप्लोमेटिक आइसोलेशन फेस कर रहा है क्योंकि जो ग्लोबल फोकस टेररिज्म से हटकर अपने अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट पर शिफ्ट हो गया है
और ये बड़े देश यानी कि जितने भी बिग कंट्रीज़ हैं अब ये कोऑर्डिनेटेड एक्शन पर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं. Second point, White India has consistently highlighted Pakistan sponsored terrorism as a major security threat. The global community today is less responsive to India's concerns because geopolitics is increasingly dictated by great power competition rather than global consensus. इंडिया हमेशा पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म को हाईलाइट करता आया है, लेकिन वर्ल्ड अब इंडिया की कंसर्न्स को पहले जैसा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है क्योंकि जियो पॉलिटिक्स अब ग्रेट पावर रिवलरी पर ज़्यादा डिपेंड करती है. थर्ड पॉइंट, द आर्टिकल पॉइंट्स आउट दैट मेजर वर्ल्ड पावर्स इंक्लूडिंग द यूएस आर इंगेजिंग विद पाकिस्तान ड्यू टू स्ट्रैटेजिक conclusions such as Afghanistan, China's rise, and regional stability, which reduce this international pressure on Pakistan regarding cross-border terrorism. यूएस और बाकी मेजर पावर्स पाकिस्तान के साथ इंगेज कर रहे हैं अफगानिस्तान सिचुएशन, चाइना की राइज और रीजनल स्टेबिलिटी के चलते, जिसकी वजह से पाकिस्तान पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर इंटरनेशनल प्रेशर कम हो गया है. फोर्थ पॉइंट, India's diplomatic influence seems less effective than before in shaping global narratives on terror, partially because global priorities have shifted toward economic competition, Ukraine conflict, West Asia tensions, and the US-China rivalry. फोर्थ पॉइंट से इसके इंडिया की डिप्लोमेटिक एबिलिटी ग्लोबल टेरर नैरेटिव को शेप करने में पहले जितनी स्ट्रांग नहीं है क्योंकि जो ग्लोबल प्रायोरिटीज़ हैं जैसे यूक्रेन वॉर, इजराइल हामास कॉन्फ्लिक्ट, चाइना यूएस रिवलरी और इकोनॉमिक कंपटीशन पर शिफ्ट हो चुकी है. फिफ्थ पॉइंट, अर्बन टेरर नेटवर्क्स, रेडिकुलेशन, स्लीपर सेल्स एंड इमर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड टेरर मॉड्यूल्स are creating a new security challenge for India, making internal security far more complex than earlier decade. इंडिया के लिए अर्बन टेरर, रेडिकुलेशन, स्लीपर सेल्स और टेक इनेबल टेरर मॉड्यूल्स बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज बन रहे हैं, जिसमें ड्रोन्स, इनक्रिप्टेड एप्स और ग्लोबल नेटवर्क का इस्तेमाल बढ़ रहा है. सिक्स्थ, द आर्टिकल स्ट्रेसेस दैट इंडिया मस्ट रीअसेस इट्स counter-terrorism strategy because terror attacks today are often low-cost but high-impact events, and extremist groups are using encrypted communication, drones, and global linkage to evade security एजेंसीज. आर्टिकल कहता है कि इंडिया को अपनी काउंटर टेरर स्ट्रैटेजीज अपडेट करनी होंगी क्योंकि आज के टेरर अटैक्स लो कॉस्ट होते हैं लेकिन हाई इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं और ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मेजर उनको रोकने के लिए काफ़ी नहीं है. सेवेंथ, इंडियाज़ नेबरहुड रिमेन्स अनस्टेबल with Pakistan's internal turmoil, Afghanistan's Taliban controlled environment, and China's assertiveness, making India's threat environment multi-dimensional and requiring strong intelligence coordination. इंडिया के अराउंड पूरा नेबरहुड अनस्टेबल है, लाइक पाकिस्तान की जो सियासी है और इकोनॉमिक क्राइसिस, अफगानिस्तान पर तालिबान का कंट्रोल और चाइना की असर्टिवनेस जो इंडिया की सिक्योरिटी थ्रेट्स को मल्टी लेयर्ड बना देते हैं. 8, the article concludes that India must combine diplomatic pressure, intelligence strengthening, technological upgrades, and global partnerships more effectively as terrorism is evolving and New Delhi cannot rely solely on previous methods or historical support from major powers. लास्ट कंक्लूजन ये है कि इंडिया को डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, इंटेलिजेंस स्ट्रेथनिंग, टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स और ग्लोबल पार्टनरशिप को और इफ़ेक्टिवली कंबाइन करना होगा क्योंकि जो टेररिज्म इन्वॉल्व हो रहा है और पुराने अप्रोचेस कम नहीं आएंगे.